As I was telling you about the insecticides, and I have told you that insecticides are the chemicals that are used to kill insects. A limited dosage is recommended always so that it does not hamper the environment. These chemicals have been extremely successful in controlling many pests. The usage of chemicals to control the pests is not a new method. It is age-old method. And as I have told you that in order to use certain chemicals, we must study it extensively, which almost takes several years. We must also evaluate the efficacy of the chemical, how well it can be used to kill the insect, how well it kill the insect, how much of it in terms of grams or milligrams is required to kill specific number of insect. That is, 1 gram may be sufficient to kill 1000 insect, for example. So we should be able to know how it works, how much of it is required, what is the mode of its action, what is the chemical constituent, how much it can hamper the environment. All such research work requires year-long study. So scientific research on insecticides reliability, वो कितना कारगर है, ability of selectively to kill insects, यानी कि हर इंसेक्ट को हम मारना नहीं चाहते, हम सिलेक्टिव इंसेक्ट्स को ही किल करना चाहते हैं. तो जो दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारे इंसेक्ट को चुन के मार सकता है? सेफ्टी टू ह्यूमंस के लिए और पर्यावरण के लिए वो कितना सेफ है, इन सब की बातों का स्टडी करना बहुत आवश्यक है. जैसे हम डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री देख रहे थे, किस प्रकार से वो एंटर करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट पॉइज़न, सिस्टमिक पॉइज़न, फ्यूमिगेंट. इसके अलावा हम और कई तरीके के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे कि सम एक्ट आफ्टर बीइंग इंजेस्टेड विद द फूड. These poison are often used on insects that have chewing mouth part. Few insects have piercing sucking mouth part. Take in toxin carried within the plant sap. जो मैंने आपको बताया था systematic poison. The direct contact between insect and insecticide, जो मैंने आपको बताया था contact poison. So it can enter the body through the integument. Integument का मतलब होता है skin, and often affect the nervous system. This is often used with insect that have piercing sucking mouth part. The chemical can enter the body of insect through tracheal system, but this often require the environment to be enclosed as a fumigation. जैसे मैंने आपको बताया था वाष्प के द्वारा, यदि हम फ्यूमिगेट करते हैं, धुआं या वाष्पीकृत करते हैं केमिकल को, तो वह इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ट्रेकिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है. Each insecticide has different toxicity level. Each pest has different
amount required to kill itself. हर एक इंसेक्ट की अपनी अलग केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वह मरता है। ऐसा नहीं है कि एक केमिकल, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच यदि किसी केमिकल के 1 ग्राम इस्तेमाल से मर रहा है तो टिड्डा या ग्रास हॉपर भी उतने ही अमाउंट में मरेगा, या कोई और प्रकार का बीटल उतने ही अमाउंट ऑफ केमिकल से मरेगा। हर इंसेक्ट का अपना एक डिफरेंट लेवल होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। और ये जो लेवल है टॉक्सिसिटी लेवल, इसको हम लीथल डोज से मेजर करते हैं। द insecticide has different toxicity level for each pest. This is measured by the point where lethal dose of toxicant kill 50% of the pest population, और इसको हम LD50 के नाम से हम जानते हैं, यानी लीथल डोज 50, यानी केमिकल का इस्तेमाल जिससे पेस्ट की लगभग 50% पॉपुलेशन मर जाए, तो वह जो अमाउंट है ड्रग का वह LD50 कहलाता है, लीथल डोज 50, यानी उस केमिकल का उतना अमाउंट लिया जाए जिसके इस्तेमाल से उस इंसेक्ट पेस्ट की लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो मर जाए। What insects are the target of insecticides, यानी किन प्रकार के कीटों का हम उपयोग कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने के लिए। Much of the use is in agriculture with Lepidopteran species followed by Hemiptera, Coleoptera, Diptera, the remainder among scattered group। हम जब इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लेपिडोप्टेरन स्पीशीज़ को टारगेट करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हेमिप्टेरा, फिर कोलियोप्टेरा, फिर डिप्टेरा। इंसेक्टिसाइड आर ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट मेडिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, मेनली डिप्टेरा, एनोप्लूरा, साइफनोप्टेरा, टू प्रिवेंट डिजीज़ ट्रांसमिशन। ना केवल इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर करते हैं, बल्कि हमें बीमार करने वाले या जो कई रोगजनक कीटाणुओं के वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, ऐसे कीटों को मारने के लिए भी हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जैसे मच्छर को मारने के लिए या सीसी फ्लाई को मारने के लिए, जिससे कि हम बीमारी को फैलाने वाले कीटाणुओं का भी खात्मा कर पाएँ। इसके अलावा हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं ऑफ वेटरनरी एंड डोमेस्टिक एनिमल इम्पोर्टेंस एंड द रिमाइंडर ऑन हाउस होल्ड एंड गार्डन इंसेक्ट। हमारे जानवरों को बीमार करने वाले जो कीट हैं उन पर भी हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, और हमारे घर के गार्डन आदि में उगाए जाने वाले प्लांट्स को भी कीटाणु से या कीटों से बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। An insecticide can best be used for only a year and achieve its maximum result, but more than 95% of the population of insect pests must be killed to have a decrease in next year's number। जब हम किसी इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं किसी भी कीट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें एक बार एक साल में उतना अमाउंट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उस कीटों की 95% पॉपुलेशन जो है वो समाप्त हो जाए, ताकि अगले साल इन कीटों के द्वारा
हमें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। Because normally this is not possible, yearly spray schedules were often instituted in the past. However, insect pests that survive such a regime were genetically better adapted for withstanding subsequent application, and thus resistance developed within population, particularly when high level of kill were achieved. In many instances, resistance has come not from new mutation but because of the close chemical similarity between the pesticide and naturally existing insecticide produced by plants. The allochemical which the herbivore insect has had to cope with during the evolutionary past. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार इंसेक्टिसाइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि एक बार में लगभग 95% जो कीटों की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता और इसके लिए हर साल हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। हर साल कीटनाशक के प्रयोग से कई बार इंसेक्ट्स जो हैं वो इन केमिकल्स के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं और कई बार क्योंकि हमारे कीटनाशक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वह पर्यावरण में पाए जाने वाले कई बार नेचर में उपस्थित केमिकल्स से मिलती जुलती है, जिसके प्रति जो कीट हैं उन्होंने धीरे 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 अपने उद्विकासीय जर्नी में उन केमिकल के प्रति भी रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। उत्परिवर्तन के द्वारा more than 500 insect species have been tested and show resistance, including 20 of the worst agricultural and medical pests that are resistant to nearly all type of insecticide. और क्योंकि इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, 500 ऐसी इंसेक्ट प्रजाति अभी टेस्ट की गई है जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया है जिन भी केमिकल का हम उपयोग कर रहे हैं उनके प्रति। यानी उस केमिकल का कितना भी उपयोग कर लो, इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा एक प्रोडक्ट है DDT, जिसको कि शुरू में बहुत ही कारगर उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु आजकल मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट DDT के प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं और ये रेजिस्टेंस उनके जीन में आए म्यूटेशन की वजह से हुआ है और एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। Types of insecticides. Insecticides are grouped into botanical, inorganic, microbial, and synthetic organic compound. Botanical compound, for example, pyrethroid, produced by the ground flower of daisy, of botanical, both nicotine and pyrethrin are contact poison and are available in the market today. Inorganic compounds were far more toxic, but they must be ingested by the insect to kill them. For example, Paris green, arsenate, fluoride, sulfate, arsenate, etc. These inorganic poisons have been banned from use. Microbes can produce insecticide. These microbes can be applied directly to crop in similar manner as other insecticides.
कई बार जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी हम इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है यह हमारे इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं और उनके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। Last group of insecticide are the synthetic organic. DDT, the first of new synthetic organic insecticide, were introduced extensively at the end of the World War II. It was very effective for killing the insect in those days. Synthetic compounds में organochlorine, insecticides containing carbon, hydrogen and oxygen यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि एल्ड्रेन और डीडीटी। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है। कार्बोमेट्स, स्ट्रक्चरली एस्टर ऑफ अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। माइक्रोबियल कंपोनेंट्स के रूप में एक पैथोजन बैसिलस थुरिंजिएंसिस इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट के शरीर के अंदर जाके, इंटेस्टाइन में जाके उसकी इंटेस्टाइन को फाड़ देता है और ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, THURENGIENSIS। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। नोवल कंपाउंड्स विच इनहिबिट सिंथेसिस इन इंसेक्ट, जैसे कई ऐसे कंपाउंड्स या फेरोमोन्स हम कह सकते हैं जिनके द्वारा इंसेक्ट का जो ग्रोथ है वह रुक जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल पेस्ट कंट्रोल, क्या क्या उपयोगिता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जितनी लागत लगती है उतना हम इससे फ़ायदा पा सकते हैं। टाइमलाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमें पता है कि कौन सी केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कब इस्तेमाल किया है, उस केमिकल के अंदर क्या हमने परिवर्तन किए हैं, क्योंकि हमने खुद ने मैन्युफैक्चर किया है इसीलिए हमें उसकी टाइमलाइन पता होती है और हम इस केमिकल के अंदर परिवर्तन कर हमारे इच्छा अनुसार रिज़ल्ट पा सकते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, हम हमारी इच्छा अनुसार इसका उत्पाद कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में है। क्वालिटी, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं तो इसकी क्वालिटी पर भी हमारे पास नियंत्रण होता है और इसका क्या दाम रखना है वह भी हम तय कर सकते हैं, यानी वो कंपनी जो इन प्रोडक्ट को बना रही है उनके हाथ में इसका प्राइस होता है। प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम, जो आने वाली इंसेक्ट्स से मुसीबत है उसको हम रोक सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि इनको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हम सोच समझकर सिंथेसाइज करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षा प्राप्त होती है। डिसएडवांटेजेस, रिडक्शन ऑफ बेनिफिशियल स्पीशीज़, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, कई बार इन पेस्ट केमिकल्स का इस्तेमाल करने से पेस्ट के साथ साथ नॉन हार्मफुल इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ स्प्रे एंड वेपर ड्यूरिंग एप्लीकेशन कैन कॉज सिवियर डैमेज एंड रेसिड्यू प्रॉब्लम इन क्रॉप्स, जैसे पहले बता चुके हैं कि क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं तो ये क्रॉप्स के ऊपर बैठ जाते हैं, सॉइल के अंदर बैठ जाते हैं। क्रॉप के अंदर बैठने से ये केमिकल्स हम मानव के शरीर में जाते हैं, यदि सब्जियां प्रॉपर तरीके से हम धोए ना, सॉइल के अंदर ये केमिकल बैठ जाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि ये केमिकल्स पादपों या क्रॉप्स के अंदर सिस्टम में चली जाती है और जो कि हमारे फूड चेन के अंदर एंटर कर जाती है।
कई बार इंसेक्ट्स जो हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड्स एंड हैंस वी टेंड टू ओवर यूज द केमिकल एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ केमिकल कैन लीड टू मोर डैमेज दैन बेनिफिट। कई बार इन पेस्टिसाइड्स के प्रति हमारे कीट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हम ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होते हैं। पॉइजन हैज़र्ड एंड अदर हेल्थ इफ़ेक्ट। पॉइजनिंग of the crop, poisoning of the land, by mistake if chemical is ingested by human can also kill the person.